Hello everyone, and you are watching Learn with Akriti. Guys, today I am again back with 5 new English words and I hope आपको मेरे पिछले वीडियोस अच्छे लगे होंगे. प्लीज़ अगर नहीं देखें तो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, जिससे कि आप अपनी वोकैबुलरी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे न्यू वर्ड सीख करके और आप उनको यूज कर सकते हैं. इंग्लिश इज नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट. इंग्लिश वर्ड्स उतने टफ नहीं होते हैं जितना हम अपने दिमाग में उनको बना लेते हैं. तो प्लीज टेक योर टाइम आउट एंड डू वॉच माई वीडियो. दिस विल हेल्प you in improving your vocabulary. And let me know in the comment section if there's any doubt or any feedback you have to give for my video. I will surely try to work on that. I hope you enjoy watching these videos and the examples, and please use them in your vocabulary daily in your conversations. This is what I'm saying again and again because of the fact that people see these words and they forget it. Usually it happens with most of the people that when they see these words, they see it on internet and everything, and then they forget it. So the easiest tip is to write it down somewhere on a pen and paper, or maybe on your laptop on a notepad somewhere, so that you can go through them and revise them and make it a part of your conversations. The more you use these words, the easier and the more comfortable you will become with using these words. Let's move on and see what 5 words are in storage for you today. Sorry. So the first word is silhouette. Silhouette. Silhouette का मीनिंग है परछाई, छाया या आकृति, which means dark solid shape against a light background. इसको हम सिनोनिम्स कैसे यूज कर सकते हैं? इसके कंटोर, शेप और शैडो. हम सिलोएट की जगह पे ये सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस: आई सॉ अ सिलोएट with my sleepy eyes and slipped into slumber again. मैंने एक छाया अपनी सोती हुई आंखों से देखी और फिर मैं नींद में चली गई. Second sentence is, as she saw a silhouette around the corner, she could not help but run for her safety. उसने जैसे ही एक छाया किनारे पर देखी, वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए वो भाग गई. The silhouette in this portrait is a sign of a great artist. इस पोर्ट्रेट में, इस पेंटिंग में जो आपका परछाई आ रही है, जो छाया, जो शैडो पीछे से आ रही है, वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉन्ग्रुइटी. इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब नॉट इन हार्मनी विद समथिंग. इनकॉन्ग्रुइटी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तालमेल ना होना, आउट ऑफ प्लेस या इनअप्रोप्रिएट. हिज वार्डरोब वॉज इनकॉन्ग्रुअस विद द थीम ऑफ द पार्टी. हिज वार्डरोब मतलब उसके जो कपड़े थे वो तालमेल नहीं खा रहे थे पार्टी की थीम से, जो कि पार्टी में नीडेड थे. It was, we can also say his wardrobe was out of place or inappropriate with the theme of the party. The incongruity of the questions made me very nervous. The inappropriateness of the questions or maybe the out of place questions made me very nervous. जो questions बहुत ही ज़्यादा अटपटे से थे, वो मुझे नर्वस कर रहे थे. He had put up a great show as she laughed loudly by the incongruity of his words in the comic act. उसने एक इतना अच्छा शो करा कि वो बहुत जोर से हंस रही थी उसके अजीब से, उसके तालमेल ना खाते हुए शब्दों से, जो कि एक कॉमेडी एक्ट था उसमें. Moving on to our next word, shenanigans.
वेरी फैंसी वर्ड, लोग इसको आजकल कैसे भी मोस्टली मीनिंग नहीं भी पता है, स्टिल साउंड्स वेरी फैंसी, तो यूज कर लेते हैं, कभी सही कभी गलत, बट लेट अस सी व्हाट इज द राइट मीनिंग. इट मीन्स सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, डीवीएस, हाई स्पिरिटेड ट्रिक्स. इसका क्या मतलब है कि कुछ धोखेबाज एक्टिविटी, कोई धोखेबाज हरकत करना, कोई शैतानी करना, कोई मजे मजे में शैतानी करना. केपर्स, synonyms are capers, misbehavior or horseplay, which can be used in place of shenanigans. No matter what he says, but this fundraiser is a cover up of his shenanigans. कोई फर्क नहीं पड़ता जो वो कह रहा है, लेकिन ये जो फंड रेजर, जो फंड्स इकट्ठा करने के लिए उसने कोशिश करी है, ये एक वो उसकी जो धोखेधड़ी की हैबिट है उसको कवर अप करने के लिए उसने करी है. The cook wasn't ready with lunch and it was certain that the staff was engaging in shenanigans. जो हमारा खाना पकाने वाला था वो अपने लंच के साथ में तैयार नहीं था, और ये पक्की बात थी कि जो किचन का स्टाफ था वो किसी शैतानी में, किसी शैतान हरकतों में एंगेज हो रहा था. There are always shenanigans involved when solving a mystery. कुछ ऐसी धोखाधड़ी या कोई ऐसी सीक्रेट जो कि किसी धोखेबाजी से लिंक्ड है, ये जब हम कोई मिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी धोखेबाजियां या कुछ ऐसी हरकतें जरूर इन्वॉल्व होती हैं. Please people, if you have any doubts, let me know in the comment section. Please do like and subscribe my video. Moving on to our next word is consonance. Consonance का मतलब क्या है? Agreement और compatibility between options और opinions. इसका मतलब क्या है? लोग की चीजों के बीच में अग्रीमेंट कितना है, कितना ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ में जा रही हैं, कंपैटिबिलिटी हो रही है, कितना ज्यादा सामंजस्य है चीजों के बीच में. there has to be consonance, there has to be consonance between members to take a conclusive decision. लोगों मेंबर्स जो हैं उनके बीच में एक तालमेल, एक सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि वो एक कंक्लूसिव निष्कर्ष पर आ पाए. Because his thoughts were in consonance with the board, he was hired immediately. क्योंकि उसकी सोच जो थी वो बोर्ड मेंबर्स के साथ में सामंजस्य में थी, इसलिए उसको तुरंत जॉब पे रख लिया गया, उसको हायर कर लिया गया. A lot of trust and consonance is required for a good relationship. बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और सामंजस्य चाहिए होता है एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी. यूलॉजी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रशंसा भाषण हिंदी में. A speech or writing praising someone mostly like a tribute. यूलॉजी जो है जनरली एक स्पीच होती है या एक राइटिंग होती है जिसमें हम दूसरे की प्रशंसा कर रहे होते हैं, दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं. ये जनरली ट्रिब्यूट होता है. ट्रिब्यूट क्या होता है? जो कि हम किसी के, अधिकतर जब इंसान नहीं होता है, गुजर जाने के बाद उसके लिए करते हैं, या वो है तो भी उसने अपनी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें करी हैं उन सबको याद करते हुए एक हम यूलॉजी लिखते हैं. उसको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कह के ग्लोरीफाई या अपलॉड. तो हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? दिस यूलॉजी फॉर मिस्टर कलाम इज सो इमोशनल एंड रिस्पेक्ट वर्दी. हम यहाँ पे ग्लोरीफाई अपलॉड भी यूज कर सकते हैं. दिस ग्लोरिफिकेशन या दिस अपलॉड फॉर मिस्टर कलाम. तो हम देख लेते हैं. दिस यूलॉजी मीन्स ये जो प्रशंसा भाषण लिखा गया है मिस्टर कलाम के लिए, ये इतना इमोशनल, इतना भावुक और
आदरणीय है. His eulogy for his father's funeral made people cry. उसने जो प्रशंसा अपने पापा की उनके गुजर जाने के बाद की, उससे लोग जो हैं सुन करके रोने लग गए. A person has to be open for criticisms and eulogies equally. एक इंसान को अपने अच्छाइयों और अपनी बुराइयों, अपनी तारीफ, प्रशंसा और अपनी बुराइयों यानी क्रिटिसिज्म के लिए, दोनों चीज़ों के लिए इक्वली हमेशा ओपन रहना चाहिए. So people, guys, these are the 5 words that we have learned today. I hope you will enjoy going through them again and again. If there is any doubts, please let me know. And I hope you like my video. You please share my video so that more and more people come to know about it and they learn from this video. This is only for educational purpose, and the sentences here used are also, I have very limited time and space for the sentence example, but if in case you are interested in learning more sentence examples for different words and you want me to give certain more examples here, please let me know in the comment section. Thank you.